Hi everyone, and welcome to my YouTube channel. Today we have Ayushi Goyal with us. So she had qualified her CA in November 23 examination with All India rank 48. Um, Having her in our channel is a great achievement for me as well because currently she is the youngest chartered accountant in India. So I would like Ayushi to brief about her. So Ayushi, आप please continue कर लो. Sure. So, first of all, thank you, Sudhanshu, for having me on your channel. It's a pleasure for me. And about me, like you said it. So, I qualified CA in November 2023 with All India rank 48. And I cleared it at the age of 19 years and 5 months by becoming the youngest female chartered accountant of India. My record is certified with India Book of Records. And about my CA journey phase, like I did my articleship from a mid-sized firm, Acupro Advisory LLP. Then I switched to EY for industrial training, one of the big fours. So yeah, that's about me. So Ayushi, initially मतलब when you say industrial training तो EY तो क्या EY provide करता है industrial training और करता okay है दे actually. हम्म So actually, what EY का internal policy है that the all their articles get converted into industrial trainees after 18 months. So I mean, it's just that so that they can be on EY's EY's internal system. okay okay so दे रहेगा तो फिर बहुत Uh, excited आप हो गए होगे. Definitely. I mean, getting a rank in CA final is something that every CA aspirant aspire to. But obviously, a few could do this. So this was definitely one of the best moments of this year. So आयुषी जब आपने देखा that you have qualified तो आपको पता था कि you are the youngest chartered accountant या फिर आपको किसी ने बताया कि आप एक बार जाके चेक करो अपना एज क्या पता आप youngest हो. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था when I joined the CA journey and then foundation, after clearing foundation, inter as well, my family started calculating my age till the time I will clear CA. And uh, comparing it with the previous record, they were all really excited because they know that if I clear it in first attempt, then I'll be the one. So they were all like, ये तो होके ही रहेगा. मतलब obviously your family is definitely sure that yes, my daughter or she'll clear it. करेक्ट करेक्ट. तो अच्छा मतलब कि जैसे ही आपका निकल गया होगा रिजल्ट तो सबको पता है कि यंगेस्ट हाँ. चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर आपने रैंक देखा होगा Yeah, कि मेरिट लिस्ट में आ गया. मतलब after my results were declared, I told it to my brother who is also a chartered accountant. So हम्म he posted the same on LinkedIn. So because of which, it got so many likes and all. So that's how people came to know about it. एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट यू एज वेल. मैंने भी Yeah, उन्हीं का yeah. पोस्ट देखा था एंड देन आई रीच आउट टू यू. तो आयुषी Hmm. मतलब आप बोल रहे हो कि व्हेन यू हैड जॉइंट सीए तभी लोगों को पता था कि अगर सारे लेवल्स पे क्लियर कर लेगी तो फिर आप निकाल लोगे. तो आपने मतलब कि कब एंटर किया था सीए एजुकेशन पे. So right after my 12th, I actually uh, I think around 30th March को हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे 12th बोर्ड्स के. And then on 2nd April I was in Jaipur for preparing for foundation. So it was just a gap of 2 days. So that's when actually my CA journey started in 2019. ओके ओके. तो आपने कितने इयर्स में क्वालिफाई कर लिया मतलब आप एक बार वो बता सकती हो. Around 4.5 years or 4.6 नहीं नहीं something. मतलब एट व्हाट एज यू क्वालिफाइड योर सीए. Yeah, so age 19 years, 5 months and 19 days to be very specific. और प्रीवियस रिकॉर्ड इफ यू रिकॉल इट क्या था मतलब आपको तो Yeah, पता I ही mean, होगा मेरे ख्याल से. previous is of I mean, we all know her, Nandini Agrawal, 19 years, 330 days. ओके 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 मतलब मेरे को तो नहीं पता है कि
व्हाट इज द एग्जैक्ट एज जब उन्होंने क्वालिफाई किया, बट डेफिनेटली आपको पता होगा क्योंकि अब वो रनर अप है, आप फर्स्ट, ऐसा। ओके। तो आयुषी, आपने रैंक भी लाया है सी फाइनल, तो आप any guidance that you would like to give to all the CA aspirants जो कि रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, and that too they want to qualify in their very first attempt? सो बेसिकली जब मैंने भी अपना मतलब सीए फाइनल्स की प्रिपरेशन शुरू की थी, हम्म। तो था यार कि मतलब क्योंकि मेरी फाउंडेशन में रैंक आई थी और बिकॉज वो रैंक की फीलिंग एक अलग ही थी, सब बहुत हम्म। खुश थे, तो मैं चाहती थी कि फाइनल्स में भी रैंक आए। एंड फाइनल्स में रैंक आने के होते हैं थोड़ी आई मीन जॉब के लिए भी थोड़ा, तो वो माइंडसेट तो था हमेशा से। हम्म। बट उसके लिए वही था, आई मीन बहुत सारी चीजें हैं रैंक के लिए भी हमें, लाइक मेरा ये था कि वही चीजें कि लाइक दिन में इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, और बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना था। लाइक मैंने इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया था, लिंक्डइन भी मैंने उस टाइम के लिए बंद कर दिया था, वो 6 महीने का मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं थी, सिर्फ व्हाट्सएप यूज करती थी, टेलीग्राम यूज करती थी। बट देन क्या हम्म। हुआ, यूट्यूब पे भी आजकल शॉर्ट्स का फीचर आ गया है, तो वो काइंड ऑफ इंस्टा रील्स ही हो गया था। तो उसके हम्म। लिए भी फिर मैंने यूट्यूब पे सेपरेट मेल क्रिएट की थी, और उस सेपरेट मेल पे आई यूज टू वॉच ओनली सीए स्टडी रिलेटेड कंटेंट। और हम्म। उसको फिर मैंने इतना बोरिंग बना दिया था कि मैं कभी यूट्यूब खोल के स्क्रॉल भी करती थी तो खुद ही रख देती थी 5 मिनट बाद, क्या है यार ये भी मतलब बेकार ही है। तो दैट्स हाउ अब। आई यूज टू कैटर डिस्ट्रैक्शंस। हम्म। बाकी फिर वही मतलब अपना डिटर्मिनेशन था कि हाँ इतने घंटे पढ़ना है, ये टारगेट्स पूरे करने हैं, वही एक स्टडी प्लान के थ्रू इतने रिवीजन्स टारगेट करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। तो हम्म। दैट इज ऑल, मतलब आई बिलीव कि अगर यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ and you हम्म। have that focus and determination, then you can get what you want. तो अब तो आपका जो ईमेल आईडी है वो ऐसे ही पड़ा हुआ होगा कहीं साइड में, आप देखने भी नहीं चाहते होगे उसको? हाँ, अब तो वो मैं कभी स्विच नहीं करती उसको। कभी कर लिया तो कर लिया कि चलो थोड़ा पुराना अपना वो भी देख लेते हैं, बट हम्म। वैसे तो बंद ही कर दी हूँ मैंने अब। सो आयुषी, एज यू मेंशन कि आपने जैसे ही ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन दिया था तो आप मूव कर गए थे और सीए फाउंडेशन के लिए, तो मतलब क्या ये पहले से डिसाइडेड था कि नहीं, अब मेरे को सीए ही करना है ट्वेल्थ के बाद? मोटिवेशन क्या रहा टू डूइंग दैट सीए? मतलब क्या फ्रॉम द फैमिली इट वाज देयर कि नहीं सीए तो करना ही है, ऐसा कुछ? नहीं मतलब ऐसा स्टार्टिंग से तो नहीं था, बट बिकॉज माई ब्रदर वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंट, सो आई हैव सीन हिम, आई मीन आई हैव सीन हिज स्ट्रगल as well. I've seen him before CA and after CA as well. हम्म। So he was one of the reasons why I choose CA after 12th. I mean, because after commerce, तुम like being honest, थोड़े पढ़ाई में अच्छे होते हो ना, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाइक कोई टफेस्ट एग्जाम ही क्लियर करेंगे या उसी के हम्म। लिए प्रिपेयर करेंगे। सो हम्म। वो भी थोड़ा था, फिर वही भाई की वजह से दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू चूज सीए। ओके। तो जब आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया होगा, मे बी आप 16 साल की रही होंगी, आई एम जस्ट बैक कैलकुलेटिंग इट, तो डेफिनेटली आपको आर्टिकलशिप लेने में दैट वुड बी अ ग्रेट चैलेंज कि कैसे आर्टिकलशिप मिलेगा अभी। क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया था 18 ईयर्स में या 19 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली, बट उस यंग एज में आर्टिकलशिप ढूंढना, उसके बाद फिर स्टार्ट करना, उसके बाद फिर आफ्टर 1.5 years यू स्विच टू ईवाई विच इज वन ऑफ द बिग फोर्स, तो फिर वो काफी चैलेंजिंग फेज रहा होगा, एंड हाउ डिड यू कोप अप? मतलब डेफिनेटली मेरी सीए जर्नी का सबसे चैलेंजिंग फेज ही वही था, बिकॉज हम्म। आई मीन आर्टिकलशिप चलो ज्वाइन भी कर ली, तो भी उसके बाद आई वाज लाइक, मीन एट 16 years ऑफ एज आई यूज टू फील लाइक यार क्या मतलब सारे दिन और मैं ऐसे एक रूम में बंद और लैपटॉप पे वो सब कर रही हूँ। एंड हम्म। मतलब थोड़ा खुद को अंदर से फील होता था कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम्म। बट शुरू के फर्स्ट 1-2 महीने तो थोड़े थे ऑफिस में, बट उसके बाद फिर कोविड आ गया था, कोविड की वजह से अपना वर्क फ्रॉम होम हो गया था सबका। हम्म। सो उस फेज में थोड़ा जस्ट बिकॉज आई वाज एट होम तो थोड़ा ठीक फील होता था। एंड देन फिर मेरे को काम में थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा, मैं सीनियर्स वर वेरी कोऑपरेटिव एक्चुअली, हम्म। सो हम्म। बिकॉज ऑफ विच आई वाज एबल टू पास थ्रू इट। ओ, ओके। मतलब
in your mid-sized firm as well, or EY में भी आपको similar kind of support मिला, right? Yeah. Okay. तो once you qualify CA, obviously मैं ये अज्यूम कर रहा हूँगा कि आपको मेंबरशिप नंबर नहीं मिला होगा अभी, करेक्ट, जो कि वो 21 ईयर्स पे मिलता है। मेंबरशिप एंड कॉन्वोकेशन वो डिले हो गए। अच्छा, तो वो आपको शायद 2 साल बाद मिलेगा, मेंबरशिप नंबर भी। और ओके, ओके। तो वंस यू क्वालिफाई सीए, तो नेक्स्ट स्टेप जो जनरली लोग लुक आफ्टर करते हैं वाज इधर प्रैक्टिस और जॉब। तो आप जॉब में जा रहे थे, राइट? तो वो कैसा, मतलब कि वाज इट अ चैलेंजेबल टास्क कि आपको, मतलब कि आप अभी जॉब सर्च कर रही हो, और मे बी इन द इंडस्ट्री यू वुड बी कंसिडर कि आप प्री मैच्योर हो, अभी तो नहीं लेंगे, ऐसा कैसा? तो क्या क्या चैलेंजेस उस फ्रंट पे फेस करना पड़ा, और या फिर इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस? Frankly, when I applied through campus placement, सो हम्म, कैंपस प्लेसमेंट में तो बिकॉज रैंक था तो सिलेक्शन तो इजीली हो जाता है, मतलब उनका सीवीज एंड ऑल तो इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। फिर हम्म, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस में भी मीन इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस फॉर कैंपस हम्म, प्लेसमेंट, हम्म, बट आई मीन बिकॉज ऑफ प्रोफाइल यू से और समथिंग, बट आई डिड नॉट go for that job. But off campus, it's quite challenging. I mean, you have to reach out on LinkedIn to as many people as you can, and so that is quite challenging. So trying to find out. आप ये डालते हो कि यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ, ऐसा करके अपने सीवी में कुछ हाईलाइटेड? नहीं, हाँ, सीवी में एज एन अचीवमेंट डाला हुआ है, या हाँ, दैट क्वालिफाइड सीवी दिस इट सो। okay. जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं डालता हूँ, बट फॉर यू डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत अचीवमेंट सा साउंड करेगा कि वो देखे, अरे ये तो इस नहीं, पर वो, मतलब। हाँ हाँ, वो मेरे को एक बार कॉल भी आया था, मैंने एक जगह अप्लाई किया था, तो दे सेड कि आयुषी योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस दिस, सो यू मस्ट बी अराउंड दिस इयर्स ऑफ एज। मैंने कहा यस। हम्म, कहते मीन, सो शी स्टार्टेड लाफिंग, आई मीन, प्लीज टेल मी हाउ इज इट। Then I was also laughing. Then I told her, how is this? And she was like, oh, okay. मतलब मेरे पास भी कोई ऐसा सीवी आएगा तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा कि ऐसे कैसे, मतलब सबसे पहला यही सवाल जाएगा कि आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। Exactly. Because वही है ना, लगता है टाइम सीए क्लियर करने में भी, तो सो आपने, नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग जो कि बहुत रेयर है एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो क्या आप क्या फर्दर स्टडीज को आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम सीए या एचईसीए या सीएफए सीपीए, और यू आर मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी कोर्सेज लाइक एमबीए, जो कि आप को स्पेसिफिकली 2 इयर्स या कुछ सम पॉइंट ऑफ इयर्स आपको स्पेंड करना ही पड़े जॉब छोड़ के भी? नहीं, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर फर्दर स्टडीज, बट फर्दर स्टडीज में भी आई एम लुकिंग फॉर मोर गवर्नमेंट साइड, लाइक यूपीएससी का एक एग्जाम होता है फॉर चार्टर्ड हम्म, अकाउंटेंट स्पेसिफिकली, एंड देयर आर अदर एग्जाम्स एज वेल। सो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स आई एम थिंकिंग राइट नाउ। ओके, मतलब कि ओके फाइन। अच्छा, मेरे को पता नहीं था कि यूपीएससी के लिए एक स्पेसिफिक सीए का भी कैटेगरी क्रिएट किया गया है। मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली, बट अपने सीए के एक फैकल्टी थे, सुरेंद्र सर, जो आईडीटी पढ़ाते हैं, सो हम्म, ही टोल्ड अस दिस एग्जाम। ओह, ओके, ओके। मेरे को, मतलब कि व्हेन आई वाज इन 12th, मेरे को बस बोला गया था कि एक ये होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। बस मेरे को ये बोला गया था कि वो एक है, आप सीए बन जाओगे तो आप वो बन सकते हो, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पोस्ट है, ऐसा करके मेरे को 12th में बताया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ऐसा कुछ पहले से प्रायर नॉलेज नहीं था कि देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जिसमें सीए का एक्सक्लूसिव होता है। तो थैंक यू फॉर इनहेंसिंग माय नॉलेज। तो आयुषी, अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मतलब ऑब्वियसली अगर आप इतना स्टडी कर रहे हो तो क्या कुछ हॉबीज है जो आप फॉलो करते हो, और इज इट ऑल स्टडी स्टडी स्टडी? Actually, I love sports and music, so
मतलब मैं तो बहुत ज्यादा क्रिकेट भी खेलती आई हूँ शुरू से, क्रिकेट बैडमिंटन दोनों ही मेरे को बहुत शौक है खेलने का। अभी वो थोड़ा स्टडीज की वजह से ये दोनों थोड़ा हेल्थ इश्यूज काफी हुए हैं, उस वजह से थोड़ा बंद है। बट डेफिनेटली जब बिल्कुल लाइफ में भी थोड़ा सेटल हो जाएंगे, देन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कीप प्लेइंग द स्पोर्ट्स। ओके 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 गॉट इट। फाइन। मेरे को बस एक चीज ये जानना था दैट यू सेड कि आपको जॉब में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो आर यू मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडस्ट्री और बिग फोर? That's a tough question for me as well, as I'm looking an answer to this question. ओके। But yeah, I mean, particularly, I am more inclined towards text profile. So for that profile, I believe that Big Four is a right choice for me as of now. I mean, we'll see it later if I feel otherwise. I mean, right now, though, I feel that Big Four would be a good choice for me. Correct. Means if you want to pursue your career in tax, so a big four would be the best option. Yeah. So Ayushi, it was a great time spending with you. कोई specific message that you would like to give to all the people who are watching this video? Maybe to the CA aspirants or someone who has already qualified CA. I mean, for someone who has already qualified CA, I think I may not be the right one to give a message. But yeah, for CA aspirants, definitely. I mean, clearing CA is one of the major milestone of their journey. And for that, matlab, I've said it earlier as well that I believe there are four things. Like first of all, you should have a self confidence in yourself that मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. दूसरा, I believe you should have a system. I mean, having a system is really, really important. I mean, at what time you're sleeping, at what time you're waking up. Like मेरी भी जर्नी में फिक्स था, इतने घंटे सोना है और इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, वो सब चीजें बिल्कुल फिक्स थी, वो सिस्टम था पूरा. दूसरा, फोकस होना चाहिए ऑब्वियसली. आई मीन, पढ़ते समय अगर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस माइंड में होते हैं, तो वो सब का दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी फ़ोकस बन पाएगा. तो वो चौथी चीज़ है डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर होना है, वो हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्या मेरी इस जर्नी में एक हर्डल क्रिएट कर रहा है कि मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा, एंड देन हमें उसको खुद को दूर करना पड़ेगा खुद से. सो दैट्स इट. आई मीन, यू कैन क्लियर इट. So more or less कैसे डेडिकेटेड रहना है इस पे, हाउ टू क्लियर इट इन अ सिंगल अटेम्प्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. And yeah, thanks for your time, Ayushi, for explaining all these things and answering to my questions as well. And थैंक यू सर. if anyone has any questions, they can put their questions in the comment box. Ayushi would be answering that. I'll be just typing those answers. So yeah, thank you, Ayushi. Thanks for coming. It was a great time with you. थैंक यू सुधांशु, लाइकवाइज. Yeah, thanks.